Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? As compositions. As composition is the most important here. As sex is a pyramid referred to be a composition of population in a term of the age and sex of people. It gives indications regarding to the growth rate of population and the nature of population in the term of working and non-working section. As per the census of the India 2001, children up to the 14 years of age account for the 35.3% of the total population. There is a most important point here. In 2001, the children up to the 14 years of age account of 35.3% of the total population. The age group of 50 to 59, the year account for a 56.9% here of the total populations, and the age group of 60 year above there is 7.4% of population. The age of structure has been undergoing some gradually change during the recent of decline. That is the most important point here. One of the trends is the proportion of younger populations is there is age group of 0 to the 14 year is a decline, and the percentage of person on the working age group is a 15 to 59 age group as well as all age population. The 60-year and above the increasing. But in 2001 census, there is a percentage of person in the S group of 15 to 59 declined from to the 57.7 in 1991 to 56.9. In 2001 census, however, there is a proportion of the people in the all age group has increasing from a 6.6%. In 1991, there is 7.4 in 2001 census. Proportion of the younger population is a 0.14 year, declined from 36.6% in the 1991 to be 35.3% in 2001 census. This is more important here. And next year table, there is a percentage distribution of total population by the age and sex in 2001. There is a most important table here. Come here, table and see here. Here the most important here, a percentage view or distribution of total population by age on sex of India is 2001. There is a age group, total person, male and female. There is 0 to 4 year, 10%, 10 year only. And the male is a 10 and the female is a 10 also is a equal. But 5 to 9 here is a 12.5. There is a 12.5 is a total person, but also is the same here. But 15 to 19 there is a also here 9.7 and 2024 is a 8.7. But next year 25 to 29 is a 8.1 total, but male is a 7.8 and 8.4 the female. There is a most important point here. The female is stray here, and the also is a 65 to 69. The age group is a total population here 1.9. There are male is a 1.8 and female is a 2.1. There is a most important point here. In this table, they show the age group on the different years and different age group here. Here show the most important India age sex on a structure 2001. There is a most important structure here. There is a maximum age here 12.5 to 12.3. There is a most important here. The years is a 10 to the 14 years India here, but at 80 years is 0.8. There is a most important view here show in your screen the male and female here age group here and percentage also. There is a most important point here. यहाँ पर जो है आया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आयु संरचना। अब देखिए आयु संरचना क्या होती है। तो आयु संरचना का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने यंग हैं, कितने बूढ़े हैं, इन सब बारे में जो है एनालिसिस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किसका अनुपात जो है देश को कैसे जो है इफेक्ट करता है। तो इन सब बातों पे हम प्रकाश यहाँ डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू के विषय में। तो आयु संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो आयु तथा लिंग जो है पिरामिड लोगों की आयु एवं लिंग के अनुसार संख्या की संरचना दिखाता है और इस जनसंख्या की जो है वृद्धि दर तथा कार्यशील एवं आश्रितों की संख्या कर भी संकेत करता है कितने आश्रित हैं और कितने आश्रित नहीं हैं। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार
14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे कुल जनसंख्या जो थी 35.3% थी। काफ़ी अच्छा आंकड़ा था। यानी 14 वर्ष तक की उम्र के जो है कुल जनसंख्या 35.3% थी। उसी प्रकार जो है 15 से जो है 59 वर्ष के आयु समूह में 56.9% थी। तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन तथा वृद्ध लोगों की देखा जाए जो 60 वर्ष इससे अधिक है 7.4% ही थे। यानी जो वृद्धों की संख्या थी बहुत कम थी। हाल के दशकों में भारत में आयु संरचना में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो कि यहाँ पर हम देखेंगे भी। इसमें से एक जो प्रवृत्ति है युवा वर्ग के हिस्सा का बढ़ना है। इसमें से 0 से 14 आयु वर्ग का जो अनुपात घटता नजर आ रहा है। यानी 0 से 14 वर्ष का जो अनुपात है वो घटता हुआ नजर आ रहा है तथा कार्यशील उम्र जो है 15 से 59 वर्ष तथा वृद्ध लोगों की जो है 60 एवं उससे अधिक का जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 0 से 14 वर्ष की जो आयु है वो घट रही है और कहते हैं आगे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। किंतु 2001 जनगणना के अनुसार 1991 में कार्यशील जो है 15 से 59 वर्ष व्यक्तियों की संख्या जो थी 57.7% थी, जो घटकर 2001 में जो है 56.9 हो गई। तो एक देखा जाए तो 1% की यहाँ पर गिरावट नजर आई है। ठीक है, जबकि वृद्ध आयु वर्ग जो है 60 वर्ष से अधिक जो थी 1991 में 6.6 थी, लेकिन देखा जाए 2001 में बढ़कर 7.4% हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का अंश जो है 1991 में 36.5% आंकी गई थी, लेकिन वही देखा जाए 2001 में तो 35.3 हो गई। तो एक जो है अनुपात घटी है, 1% घटी है, जो कि बहुत काफ़ी चिंता का विषय बन रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो इस सब बातों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया गया है कि भारत में आयु एवं जो है लिंग के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत में वितरण किस प्रकार है। 2001 के जो है यहाँ पर दर्शाया गई है कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्ग आयु आप देख सकते हो, कुल व्यक्ति देख सकते हो, पुरुष और स्त्री देख सकते हो। तो यहाँ पर देखा था 0 से 4 जो है सिर्फ 10.7 जो है कुल व्यक्तियाँ हैं, बट यहाँ पर बराबर चल रही थी। ठीक है, 15 से 19 वर्ष की आयु में भी कुछ हद तक बराबर ही नज़र आ रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा कि काफ़ी इसमें जो है अंतर आ गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50 से 54 के बीच में 3.6 है, लेकिन दोनों में बराबर है। स्त्रियों की संख्या बेशक इसमें कम दर्शाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें 55 से 59 वर्ष की आयु में तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल अनुपात 2.7 है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या कम गई है, स्त्रियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सबसे सोचने वाली है 65 से जो है 69 में, जहाँ पर 1.9 है और यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या जो है 1.8 है, यानी 1.8 है, वही स्त्रियों की संख्या 2.1 है। तो ये सब बातें जो है दर्शा रहा है। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो इसमें पुरुषों की संख्या कम है स्त्रियों के अंतर्गत। तो ये तो जर्नली सी बात है। आज बहुत ही चीज़ें जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब इसको भी देखिएगा, ये जो है ग्राफ आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का आयु का लिंग अनुपात संरचना कैसी है। आप देख सकते हो कि पुरुषों और स्त्रियों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो अभी जो आंकड़े दर्शाए गए हैं 2001 के अनुसार, तो यहाँ पर जो है 10 से 14 वर्षों की संख्या और 5 से 9 वर्षों की संख्या सबसे अधिक आंकी गई है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम दिखा है 60 से 64 वर्ष की आयु के आसपास घटता हुआ नजर आया है। इन 55 से 59 के आसपास देखिए घटता हुआ ही नजर आया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भारत की लिंग अनुपात संरचना 2001 के अनुसार दिखाया गया है, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही है यहाँ पर।